हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू परम क्लासेज चैनल। दोस्तों, परम क्लासेज चैनल के इस मंच पर, जो कि आपका अपना मंच है, पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली अच्छी तरह से मनाएं। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। पर दिवाली के जस्ट बाद आपको तैयार होना है एसएससी सीजीएल एग्जाम टियर 2 के लिए, जो कि आयोजित होने वाला है दिसंबर 2024 में। राइट दोस्तों, एसएससी सीजीएल मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इवेंट्स डेट्स क्या है, मेन इवेंट्स और उनकी डेट्स, सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, और डे वाइज, वीक एंड डे वाइज हमें कैसे टाइम को मैनेज करना है, डिवाइडेशन करना है, ताकि हम एक और फर्स्ट चांस में ही इसे क्लियर कर जाए और घर पर बैठकर तैयारी कर हम इसे कैसे क्लियर कर पाते हैं, वो आज हम जानेंगे। और वो टिप्स जानेंगे जो कि हमें एसएससी सीजीएल टियर 2 को फर्स्ट चांस में क्रैक करने में एक सहयोगी के रूप में हमारी भूमिका निभाएगा। दोस्तों, तो आइए जान लेते हैं वह बहुआयामी, बहुप्रतीक्षित एग्जाम एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्जाम दिसंबर 2024। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल स्टैंड्स फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। राइट फ्रेंड्स, the exam has been announced regarding the SSC CGL exam, which will be held in December 2028 for second tier. That is, you are very eager to know, I know. Friends, the date is, that is breaking news for all, and date is 15 December to 21 December. Between these two dates there will be your SSC CGL 2 tier exam. Right friends, shortlist candidates for assistant section officer, assistant enforcement officer, sub inspector, inspector, executive officer, research assistant, divisional accountant, and various other posts based on the recruitment and vacancies. Friends, that is the main topic, and we knew the exam for second year in December 2024. Events and dates. Which events are important and which dates are important for this exam? Friends, SSC CGL tier 2 के लिए admit card will come at website before the 10 days commencement of exam. Second thing, and the exam date 15 to 21st December, between these dates. Right now, the second stage CBT exam will be conducted for the candidates who will pass the SSC CGL 2024 tier
first exam and as per officials, the second tier exam is expected to held in December 2024. Candidates, the complete details regarding shift, timing, venue and exam centers will be released very soon, and we will communicate to you about that at our own channel, and that is from Classes channel. Friends, now about the admit card. As the SSC CGL Tier 2 examination is going to be held in December 2024, those who will be appearing for the upcoming combined graduate level exam will be issued an admit card for the exam. The admit card is a very important document to enter the examination hall. The SSC CGL Tier 2 admit card 2024 will start releasing 10 days before the exam for all regions, etc. Now we will know the minimum qualifying marks for SSC CGL Tier 2 exam. The minimum qualifying marks to be scored in the SSC CGL Tier 2 exam have been set by the Staff Selection Commission SSC and notified through official notification. The candidates of the general category have to score 30% marks, and for OBC, EWS, the qualifying marks are 25%, and for all other categories is 20%. That is the qualifying marks, minimum qualifying marks is. Now SSC CGL, preparing for the SSC CGL Staff Selection Commission combined graduate level exam requires a strategic approach, as lakhs of applicants have applied for the exam. As the SSC CGL Tier 2 exam is approaching, therefore it is high time for the candidates to wrap up their preparation and follow the important preparation tips which we are discussing with you to not waste your time. First of all, understand the latest SSC CGL exam pattern and syllabus. Create an efficient study plan accordingly and stick to that plan sincerely. Focus on important topics and focus on the weakness of all subjects equally. Attempt a full-length mock test to simulate the exam environment. So SSC CGL previous year question papers to understand the exam pattern and frequently asked questions. Practice time-bound tests to improve speed and accuracy. Ensure a nutritious diet for sustained energy and aim for 7 to 8 hours of sleep to keep your mind alert. Friends, these are the main tips for SSC CGL exam
to crack in first chance at your own home or place. Friends, now we will know all things in Hindi also. दोस्तों, एसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न के साथ साथ आज हम जानेंगे डे वाइज हम एक जो तैयारी है उसका प्लान कैसे बनाएं और टिप्स क्या है, ये सारा जानेंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल जिसका पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अब बात यह आती है कि इसे ऑर्गेनाइज कौन करता, वह है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। यह ग्रुप बी और सी श्रेणी के जो राजपत्रित और गैर राजपत्रित अधिकारी हैं उनके लिए एग्जाम करवाया जाता है। एसएससी सीजीएल पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह से जानना प्रभावी परीक्षा तैयारी की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तर सीजीएल परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। आज हम उनको क्रमवार जानेंगे, उसके बारे में कि हाइलाइट्स क्या है एसएससी सीजीएल के, और विवरण भी आज ही हम जानेंगे। स्तरों की संख्या कितनी है, तो टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड। परीक्षा मोड क्या है, टीयर फर्स्ट ऑनलाइन, टीयर सेकेंड भी ऑनलाइन। पत्रों और अनुभागों की संख्या क्या है, टीयर फर्स्ट में 4 खंड होंगे, कितने, 4 पार्ट। अंग्रेजी, बुद्धिमत्ता और तर्क, सामान्य जागरूकता मतलब जीके, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी की समझ, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, राइट। टीयर 2 जो कि अभी दिसंबर 2024 में होने जा रहा है। एसएससी सीजीएल टीयर 3 में 3 पेपर होते हैं, जो कि ये हैं। पेपर फर्स्ट में गणितीय क्षमताएं, तर्क और सामान्य बुद्धि, अंग्रेजी भाषा और उसकी समझ, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर का ज्ञान, डेटा प्रविष्टि कौशल। पेपर सेकंड में सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। पेपर थर्ड में सामान्य अध्ययन, वित्त एवं अर्थशास्त्र। ये सारी चीजें आपको हैंडल करनी होगी टीयर 2 के पेपर्स में। अब परीक्षा अवधि की बात आती है, तो परीक्षा अवधि कितनी है, टीयर 1 में 60 मिनट का है, तो टीयर 2 में पेपर 1 के लिए फर्स्ट के लिए 150 मिनट्स 150 मिनट, और पेपर सेकंड और थर्ड के लिए 120 मिनट तय किया गया है। अब हम प्रश्नों की संख्या जान लेते हैं। टीयर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे और टीयर सेकंड में 350 क्वेश्चन शामिल होंगे। प्रश्नों के प्रकार, टीयर फर्स्ट में एमसीक्यूज वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पीय, टीयर सेकंड में बहुविकल्पीय मतलब वस्तुनिष्ठ, एमसीक्यूज एंड डीईएसटी। कुल मार्क टीयर फर्स्ट में 200, टीयर सेकंड का 800 मार्क्स। और भाषा कौन सी होगी पेपर की, वो है टीयर फर्स्ट में अंग्रेजी और हिंदी, और वहीं से टीयर सेकंड में भी अंग्रेजी और हिंदी आपकी भाषा रहेगी। अब सामान्य जागरूकता तैयारी कैसे कर सकते हैं हम, उसका आज हम जानेंगे, अभी जानेंगे दोस्तों। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, सामान्य जागरूकता देश और समाज में हो रही घटनाओं के बारे में उम्मीदवारों को जागरूकता का परीक्षण करती है। सामान्य जागरूकता प्रश्नों की तैयारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत जो है वह है मीडिया, समाचार पत्र, टेलीविजन, ये है। दोस्तों, सामान्य जागरूकता अनुभाग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है एसएससी सीजीएल परीक्षा में चयन के सपनों को। यही जो है जीके का नॉलेज, यही तो उनके सपनों को बना देता है, यथार्थ में ले जाता है और यही बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, इसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स शामिल है। उम्मीदवारों को
सामान्य ज्ञान विषयों की पूरी तरह से तैयारी करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही पिछले एक साल के करंट अफेयर्स भी उन्हें देखने होंगे। हाल के पेपर में पिछले साल के करंट अफेयर्स टीयर 2 परीक्षा में पूछे गए थे। गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी एसएससी सीजीएल परीक्षा के अन्य खंड हैं। उम्मीदवारों को इन सभी विषयों की तैयारी के लिए एक ही समय में पढ़ने, सीखने और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय कम होता है। इसके लिए सभी विषयों की एक साथ तैयारी करने के लिए एक ठोस योजना होनी चाहिए और उस योजना को आज हम जानेंगे, लेकिन पैटर्न को भी जानेंगे। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता दो खंड हैं। सामान्य ज्ञान एक विशाल खंड है जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, पर्यावरण और विविध विषय शामिल है। विविध विषयों का अर्थ है पुरस्कार, समाचार में व्यक्ति, स्थान, शिखर सम्मेलन, खेल, समाचार, इसी तरह के अन्य विषय। इसमें करंट अफेयर्स विषयों के साथ ओवरलैपिंग है। उम्मीदवारों को जीके और जीए की समग्र तैयारी के लिए नोट्स बनाने चाहिए समाचार पत्रों में से, और विषयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें करंट अफेयर्स के लिए विभिन्न मैगजीन्स का अध्ययन करना चाहिए, जो कि आपके चयन में सहभागी साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों, एसएससी सीजीएल जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों, इसके लिए जो है अंतर, संख्या श्रृंखला, स्थानिक, अभिविन्यास, सादृश्य, अंकगणित, गैर मौखिक श्रृंखला, ये सारी चीजें आती है। समस्या समाधान, निर्णय, न्यायशास्त्रीय तर्क, स्मृति, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कथन, निष्कर्ष, ये सारे शामिल है दोस्तों इसमें। तो इनकी तैयारी कैसे करें? तो बात आती है कि पेपर फर्स्ट है एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड का, वह मात्रात्मक योग्यता, और पेपर सेकंड है अंग्रेजी भाषा और समझ की तैयारी के लिए उम्मीदवार के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन के लिए बताए गए समान सुझावों का पालन कर सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि हालांकि टीयर फर्स्ट मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी समझ अनुभाग और टीयर 2 के जो पेपर से विषय समान है, लेकिन टीयर 2 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में वो कठिन होंगे, उनका स्तर थोड़ा हाई लेवल का होगा। दूसरा है, जब हम स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, स्टैटिकल पेपर की, तो एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड परीक्षा के सांख्यिकी पेपर में सांख्यिकी डेटा का संग्रहण, वर्गीकरण और प्रस्तुति जैसे विषयों पर प्रश्न शामिल है। केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माप, तिरछापन, कुर्टोसिस के उपाय, सहज संबंध और प्रतिगमन, संभाव्यता निदर्शन, यादृच्छिक चर और संभाव्यता वितरण, नमूना सिद्धांत मतलब सैंपलिंग, सांख्यिकीय अनुमान, विचलन का विश्लेषण, समय श्रृंखला विश्लेषण और सूचकांक संख्या शामिल है, जो सांख्यिकी का पेपर है। और जो आज का हम सिलेबस बता रहे हैं वो हमारे वीडियो में भी आपको मिलेगा। दोस्तों, वित्त एवं लेखा का एक पेपर है अर्थशास्त्र के रूप में। यह पेपर आमतौर पर 80 मार्क्स का होता है, 80 अंकों का होता है, और इसमें लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं पर प्रश्न किए जाते हैं। इस खंड के लिए उम्मीदवार जिन महत्वपूर्ण विषयों की तैयारी कर सकते हैं उनमें त्रुटियों का सुधार, लाभ और हानि, विनियोग खाते, गैर लाभकारी संगठन खाते, इन्वेंट्री का मूल्यांकन, आय और व्यय खाते, व्यापार, मूल्यवास लेखांकन, प्राप्तियां और भुगतान और विनिमय बैल, स्व संतुलन खाता भाई आदि भी शामिल है। अब बात आती है अर्थशास्त्र। दोस्तों, यह पेपर आमतौर पर 120 अंकों का होता है और इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संवैधानिक प्रावधान, वित्त आयोग की भूमिका और कार्य, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, माइक्रो एंड मैक्रो का, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत, उत्पादन और लागत का निर्धारण सिद्धांत, बाजार के रूप और मूल्य निर्धारण, भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न और बहुआयामी तथ्यों पर और बहुआयामी जो तत्व है उन पर सवाल किए जाएंगे।
अब बात आती है कि हम रणनीति कैसे तैयार करें, जो कि ये सारा जो है सब्जेक्ट का पुलिंदा है टॉपिक्स का, उसे हम क्लियर कर पाए। दोस्तों आज जो हम आपके साथ ये शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमारी रणनीति है, जो कि टॉपिक्स हैं, टिप्स हैं, जो कि आपको एक चांस में ही यह एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगे, उसे आपने आज से पहले तो नहीं जाना होगा। और हम आशा करते हैं कि आप सभी इन टॉपिक्स को पढ़कर, जानकर, सुनकर और एसएससी सीजीएल को क्रैक करने में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2 परीक्षा के कठिनाई स्तर को देखते हुए उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी तरह से तैयारी करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों कठिनाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपटीशन भी तगड़ा है। इस कंपटीशन से उबरने के लिए, इस कंपटीशन में सफलता प्राप्त करने के लिए आज हम लेकर आए हैं, परम क्लासेस चैनल लेकर आए हैं आपके लिए वह पैटर्न, वह क्रैक करने के तरीके और वह रणनीति, स्ट्रेटेजी, जो कि आपको हंसी खेल में ही एसएससी सीजीएल टियर 2 के एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। दोस्तों एक अच्छी तरह से तैयार की गई अध्ययन योजना के बिना एसएससी सीजीएल टियर 2 को पास करना संभव ही नहीं, बेहद नामुमकिन है। दोस्तों हम आज कुछ बेहतरीन तैयारी की युक्तियां आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप तैयारी कर फर्स्ट चांस में घर पर ही तैयारी कर इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टियर 2 परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरह से समझना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों जब तक हम पेपर को नहीं ढंग से समझेंगे, तब तक दोस्तों हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसके बाद है इस बार का, अब दोस्तों एक और ब्रेकिंग न्यूज है। पहली ब्रेकिंग न्यूज तो ये थी कि आपका जो एग्जाम है वो कब होने वाला है। तो दोस्तों परम क्लासेस चैनल वो तारीख लेकर आ गया आपके साथ शेयर करने के लिए, और वो तारीख है 15 दिसंबर से 24 नहीं 21 दिसंबर के बीच की तारीख हो सकती है कोई भी। क्योंकि दोस्तों 24 दिसंबर मैंने इसलिए बोला क्योंकि अन्य आपने चैनल पे 24 दिसंबर पढ़ा होगा, लेकिन 15 से 21 दिसंबर के बीच यह एग्जाम आयोजित होने वाला है। तो दोस्तों इस बार यह पूरी तरह से बदलाव पैटर्न है, और इसलिए इसे अच्छी तरह से स्कैन करना और समझना महत्वपूर्ण है। हमारे दिमाग में इसे फिट करना जरूरी है, इसे बिठाना जरूरी है कि जो परिवर्तित है, जो चेंज्ड है, वो क्या है। दूसरी बात यह है, टियर 2 के लिए एक निःशुल्क सैंपल पेपर का प्रयास करें, जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाता है, जो कि नवीनतम और संशोधित पैटर्न पर आधारित हो। यह सैंपल पेपर आपको आपकी कमजोरियों और ताकत को जानने में मददगार साबित हो सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार को समझने के लिए जो पुराने पत्र हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनकी हम हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों अब है एसएससी सीजीएल टियर 2 के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, उन्हें बिंदु आरंभ जानेंगे। पहला है एसएससी सीजीएल टियर 2 केवल कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित किया जाएगा, कंप्यूटर सीबीटी। परीक्षा में बहुविकल्पीय एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इसके बाद प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, द्विभाषी है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए मार्क कट सकता है, और वो कितना होगा 0.25। और यह भी आपके साथ सबसे पहले परम क्लासेस चैनल ही शेयर करने जा रहा है। कितना मार्क डिडक्ट होगा, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग होगी। पेपर सेकंड केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में जूनियर सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करते हैं। दोस्तों अब अध्ययन योजना, दोस्तों जो परम क्लासेस चैनल है वो इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि उसके जो मेंटोर हैं आपके, वो पूरी रात भर जाग कर
आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि वो आपके लिए ऐसी अध्ययन योजना या तैयारी की योजना लेकर आए जो कि आपको श्योर सक्सेस प्रदान कर सके। दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी की गई नई परीक्षा तिथि के अनुसार आपको अपनी टीयर 2 परीक्षा के लिए 1 महीने का समय मिला है। अब आप कहेंगे 1 महीना कैसे? दोस्तों, दिवाली आ जाएगी और यदि आपके एग्जाम है तो आप एग्जाम देंगे, यूनिवर्सिटी के, स्कूल के एग्जाम देंगे, उसके बाद टाइम ही नहीं बचा आपके पास। और सर्दियां आ जाएगी तो नींद वैसे ही जल्दी आती है, हमें रजाई में पांव रखा नहीं कि नींद आ गई, राइट? तो हमारे पास यदि आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो आपके पास पूरा 1 महीना शेष बचा है। दोस्तों, इस वर्ष एसएससी सीजीएल परीक्षा 2024 में सीट पक्की करने के लिए इस समय का बुद्धिमानी पूर्वक ढंग से उपयोग करें। आज हम आपको 4 सप्ताह के लिए, पहले के जो 4 सप्ताह है मतलब 1 महीने का समय है, उसको हम टीयर 2 अध्ययन योजना के अनुसार जोड़कर आपको बता रहे हैं। और इस अध्ययन कार्यक्रम को दोस्तों बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना होगा और देखना होगा कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, सप्ताह पहला, फर्स्ट वीक में क्या करना है? एसएससी सीजीएल टीयर 2 परीक्षा के लिए अध्ययन योजना क्या है? दिन फर्स्ट है, पहले दिन हम क्या करेंगे? पहले वीक के पहले दिन क्या करेंगे? अंग्रेजी, उसमें क्या पढ़ेंगे? रूल्स ऑफ इंग्लिश। गणित में क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। अभ्यास प्रश्न, इन दोनों पर दैनिक अभ्यास प्रश्न हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है ग्रामर और प्रश्नोत्तर जो मैथ से आधारित है। दूसरा दिन क्या है? रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वही वापस परसेंटेज और इन विषयों पर दैनिक प्रश्नोत्तरी जो कि दैनिक प्रश्न आते हैं। तीसरा दिन भी आपका सेम रहेगा, चौथा दिन भी आपका सेम रहेगा। ये आपके पूरा वीक चलेगा। लेकिन 7वें दिन आपको करना क्या है? पिछले दिनों का रिवीजन करें और एसएससी सीजीएल टीयर 2 अंग्रेजी का अभ्यास सेट हल करें और कोशिश करें कि खुद का ही पेपर बनाकर खुद उसको हल करने की कोशिश करें और अपनी गलतियां और जो वीकनेस है उनका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। अब है वीक 2 के लिए क्या करना है? दूसरा सप्ताह आ गया, पहला सप्ताह निकला, मतलब आपके 7 दिन कम हो चुके हैं। जो कि 30 दिन था, 1 महीना था, उसमें 7 दिन डिडक्ट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। अब आपको और सीरियस होना पड़ेगा और उस सीरियसनेस के चलते दूसरा सप्ताह आपका शुरू होता है अब, और पहला दिन भी आ गया। तो पहले दिन हमें क्या करना होगा? अध्ययन योजना के तहत फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड गणित में क्या करेंगे? औसत समय एवं कार्य एवं मजदूरी, ये और इन पर आधारित जो भी क्वेश्चन है वो देखने हैं। अब दूसरे दिन क्या करेंगे? सेकेंड वीक के दूसरे दिन फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस और, लेकिन मैथ में चेंज होता है कुछ, औसत ना और जलधाराओं पर समस्या आधारित क्वेश्चंस और इन विषयों पर दैनिक प्रश्नोत्तरी जो है वो हमें देखनी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमें तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी। और तीसरा दिन वापस आ जाता है, तो सेकेंड वीक का तीसरा दिन, मतलब आपके 10 दिन, 10वां दिन है, आपके पास बचे 20 दिन। तो तीसरा दिन है फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, अनुपात एवं समानुपात, क्षेत्रमिति और इन दोनों पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो हमें हल करने होंगे, दैनिक प्रश्नोत्तरी। दिन चौथा है, इंग्लिश में सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब गणित में टॉपिक चेंज हो जाता है आपका, वो हो जाता है अनुपात और समानुपात, संख्या, श्रृंखला और गणना और इन पर आधारित प्रश्न। अब दिन 5, 5वां दिन हो गया, मतलब 15वां दिन, 15 दिन और बचे आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें अनुपात एवं समानुपात, ज्यामितीय गणित पर आधारित। छठा दिन, 16वां दिन आ गया आपका, 30 में से 16 दिन आज आप यूज करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, अनुपात एवं समानुपात, इन पर आधारित
जो भी क्वेश्चन है वो, और 7वें दिन हमें वही काम करना है कि हम इससे आधारित, इस पर आधारित सेट है वो हल करें और अपनी कमजोरियां और गलतियां वो विश्लेषित करें और जाने कि हमारी कमजोरियां क्या है। अब वीक तीसरा आ गया दोस्तों, आपके 14 दिन निकल चुके हैं, अब 15वां दिन आ रहा है आपका। तो स्वागत कीजिए आपके 15वें दिन का, और स्वागत कीजिए ऐसा कि आपको वह हमेशा याद रहे कि मैंने कभी CGL Tier 2 के समय 15वें दिन का स्वागत किया था, और वो आपको स्वागत हमेशा याद रहे। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट दिन आपको स्पेल करेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये तो इंग्लिश में, और गणित में क्या करना है, अनुपात एवं समानुपात और चक्रवर्ती ब्याज का ध्यान रखना है। इस पर पढ़ाई करनी है मन लगाकर। उसके बाद इंग्लिश में सेम रहेगा, राइट, लेकिन मैथ में चेंज होता जाएगा। लाभ और हानि, SI और CI पर मिश्रित प्रश्न हमें देखने होंगे। इसके अलावा अब तीसरा दिन आता है, वो तीसरा दिन आता है आपका लाभ और हानि पर आधारित होगा, जिंदगी का नहीं। जो आपके एग्जाम में आने वाला है वो लाभ और हानि होगी, और किस्तों पर आपको सवाल, इंस्टॉलमेंट पर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है तीसरे वीक के चौथे दिन की, मतलब 7, 7, 14 और 18वां दिन, 7, 14 और 4, 18 दिन आप जाया करने जा रहे हैं आपके। अब आपको करना क्या है, लाभ और हानि, पाइप और टंकियों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेंडर, टैंक, इनके आधार पर उनका आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद पुनः अब दिन 15वां, मतलब 19वां दिन, उसके बाद आता है लाभ और हानि और डेटा का व्याख्या, विश्लेषण करना है। छठा दिन आ रहा है लाभ और हानि, बीज गणित और इन पर आधारित प्रश्नोत्तरी, इन सब का ध्यान रखना है आपको, तभी जाकर आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा ही कुछ 4th वीक में भी होने वाला है। छूट, साझेदारी, उम्र पर आधारित, एज पर आधारित समस्या समाधान के प्रश्न, साधारण ब्याज, गति, समय, दूरी, साधारण ब्याज और ट्रेनों में समस्या, मिश्रित ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और संख्या प्रणाली, इन पर आधारित हमें सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन वही हमें करना है इस वीक के अंत में भी कि हमें गलतियों का विश्लेषण करना है, तभी हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। अब अध्ययन योजना की विशेषताएं क्या है वो हमें जाननी पड़ेगी, और वो विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं क्या है। SSC CGL Tier 2 अध्ययन योजना जो हमने बनाई है आपके लिए, उसकी विशेषताएं पहली तो है, इस अध्ययन कार्यक्रम में पाठ्यक्रम में दिए गए सभी विषयों को शामिल किया गया है, प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य हैं। हाँ, हमने जो आपके लिए कोई अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं है यदि आप तैयारी के साथ जुट जाएं तो। इस शेड्यूल में आपको नियमित मॉक टेस्ट और क्विज लेकर अपने जो प्रदर्शन है, आपने जो पढ़ाई की है, उसका एनालिसिस करने के अवसर मिलते हैं। इस योजना का पालन करने से यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको SSC CGL Tier परीक्षा में पहले ही चांस में सफलता 101% मिलेगी। यह परम क्लासेस चैनल का लिखित में दावा है, इन रिटर्न है। दोस्तों अब सामान्य टिप्स क्या है, यदि हमें हाई स्कोर लेना है, उच्च स्कोर लेना है, तो क्या करना होगा, पाठ्यक्रम से परिचित हो जाए ढंग से कि पाठ्यक्रम है क्या। उसके बाद नवीनतम परीक्षा पैटर्न की जांच करें जो चेंज हो चुका है, और जो हमने समय सारणी बताई है आपको अभी, उससे आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए इसे सीरियसली लें और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। निर्धारित करें कि किस विषय के लिए अधिक समय देना है और किसको कम देना है। अपने अध्ययन का समय प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक ना रखें। पढ़ते समय नोट्स भी ले लें, क्योंकि नोट्स बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। पिछले वर्ष के जो SSC CGL के प्रश्न पत्र हैं
वो हल करें। हालांकि उसमें से प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे ये इतर बात है, लेकिन हमें हमारी कमजोरी और स्ट्रेंथ का पता लग जाता है। दोस्तों, आत्मविश्वास बनाए रखिए। आत्मविश्वास वह पावर है, आपकी इंटरनल पावर है, इनर पावर है, जो कि आपको हारने नहीं देगी, डिगने नहीं देगी, टिकने नहीं देगी, और आपका जो मस्तिष्क है उसको आराम नहीं लेने देगी। यह वह पावर है, इनर पावर है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले हम कुछ और बातें करते हैं कि हमें पैटर्न क्या है। एक बार वापस पैटर्न की बात कर रहे हैं हम आपसे कि पैटर्न क्या है, कैसा रहेगा। और इस परीक्षा में टोटल 4 पेपर होंगे, सभी में 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर हल करने के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट और सेकंड सभी पदों के लिए अनिवार्य है। पेपर थर्ड केवल सांख्यिकी, अन्वेषक ग्रेड सेकंड और कंपाइलर के लिए है। और पेपर 4 जो है वो केवल सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रश्न का गलत उत्तर देने पर पेपर फर्स्ट, 3 और 4 में, ध्यान से सुन ले, यदि आपने गलत उत्तर दिया तो पेपर 4 है उनमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में 0.50 प्रश्न का अंक है वो काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। और पेपर सेकंड में 0.25 अंक काटे जाने का प्रावधान है। अब पेपर फर्स्ट में प्रश्न 10वीं के कक्षा के लेवल के, पेपर 2 में 10+2 लेवल के, और पेपर 3 और 4 में ग्रेजुएशन लेवल के। जिस लेवल के प्रश्न है, जो प्रश्न उस आधार पर देखिएगा पेपर आएगा। पेपर फर्स्ट आपका लेवल 10th लेवल, पेपर सेकंड थोड़ा हाई तो 10+2, पेपर थर्ड एंड फोर्थ हाई, देन द क्वेश्चन विल बी लेवल्ड ऑफ ग्रेजुएशन एग्जाम। आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित जो आपका परीक्षा केंद्र है पर कंप्यूटर उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट है उसे खुद का कीबोर्ड ले जाने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जो मेरे भाई बंधु हैं जो कि थोड़े दृष्टि बाधित हैं, उनको यह चाहिए कि वो अवेयर रहें, क्योंकि टाइम उनके लिए 2 घंटे 40 मिनट का है, मतलब 40 मिनट ज्यादा दिए जाएंगे। अब हम जान ले कि क्रैक करने के तरीके कौन से। जाते जाते हम वो तरीके जानेंगे, हमने जाने तो है तरीके, लेकिन और कुछ युक्तियां हैं जो कि परम क्लासेस चैनल आपके वक्त से चुरा कर लाया है। और वो है पिछले साल के पेपर सोल्व करें और मॉक टेस्ट दें। दूसरा, एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करें, वो तभी होगा जब आप निरंतर पढ़ाई करेंगे। तीसरा है सही ऑर्डर में हल करें प्रश्न, राइट। उसके बाद स्ट्रेस फ्री रहें, हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं करनी है। उसके बाद है रणनीति में क्या करेंगे। अब समय लास्ट का है तो क्या करना है, क्योंकि दोस्तों गंभीर है ये पेपर, बहुत कठोर कठिन है ये। तो उसके लिए क्या करना होगा, परीक्षा पैटर्न को जाने, प्रत्येक विषय को वेटेज को जाने, कितना किसको वेटेज देना है, कहां वीकनेस है वो जानना है। उसके अलावा दिन के अनुसार डे वाइज अध्ययन योजना तैयार करें और उसका पालन करें, जो कि आपके साथ परम क्लासेज ने अभी शेयर की है। आप उसको भी अपना कर तैयारी कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल को पाठ्यक्रम को जो कि चेंज हो चुका है उसको बारीकी से जाने, पिछले वर्ष की एसएससी सीजीएल कट ऑफ को जाने, विषयवार मॉक टेस्ट दें और जितना संभव हो उतना रिवाइज करें और एक्सरसाइज करें, क्योंकि मैथ एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सीजीएल, एसएससी सीजीएल का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी करने का तरीका क्या है, जो कि हमें पहले ही चांस में 101% सक्सेसफुल एसएससी सीजीएल ऑफिसर बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, आज की जो अध्ययन योजना है, यदि आपने अपना ली उसको, तो दोस्तों आपको किसी कोचिंग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नए एग्जाम की तैयारी के लिए, जो कि दिसंबर में होने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हम और आपको
टू वे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, आपको क्लास में आना पड़ेगा और हमें आपके साथ बातचीत करनी होगी। और इसके लिए कल हम इसी मंच पर इसी समय मिलेंगे। तब तक ये देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, जानते रहिएगा एसएससी सीजीएल के टिप्स को, जो कि आपको श्योर सक्सेस क्रैक के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।